Hello guys, welcome back to the channel. As you all know that the Q4 result season has started, and as a part of that initiative I am going to cover a set of 50 companies, okay? 50 very interesting unique companies that you guys should track and follow, and maybe if an investment thesis is interesting enough for you, you can also invest. What I will do, I'll break these 50 companies into a set of 5 videos of 10 companies in each video, and we'll name this particular series as the investment thesis or opportunity series. So this first video as of today is the first of those 5 videos which will come up. So let's quickly go to screener as well as some and another tool which I have made, which we will use to analyze these 10 companies today, which will be helpful for you to study them and as well as make an investment thesis out of it. These will be some very unique business. There will be some sort of advantage, some sort of moat in all of these businesses. Some of these businesses will have a lot of capex which is coming up in this future, and so these are very unique businesses. Some of these businesses are also in very unique sectors which have a lot of tailwinds. The valuations of some of these companies are also very attractive. So let's quickly start the video. Yeah, so if you can see my screen, left side of the screen has the screener.com, right, where we'll open any of these companies which we are studying and check their fundamental ratios for analysis. And on the right side, what I have done, I have created a tool which is known as the Master Tracker Investment Terminal tool, using my software experience as well as as well as data from Y Finance, and I use agentic AI to code this. So this tool will help us get a investment thesis for all of these companies. So let's quickly begin with that. So HDFC Bank से start करते हैं. Now what is the forward thesis for HDFC Bank? Very simple. First of all देखो, what is going to happen is that ये बैंक ने बहुत सारा अपने ब्रांचेस को ओपन किया है इन द लास्ट 5 years. You can read that they've opened around 4,800 branches in the last 5 years, और 43% of their entire network is coming from this new branch. तो क्या होता है, जब आप कोई भी ब्रांच बैंक का ब्रांच खोलते हो, there will be a lot of opex for setting up their branch, और वो ब्रांच जब तक मैच्योर नहीं होता या फिर 2-3 साल नहीं होता, वो ब्रांच में भी आके लोग ज्यादा पैसा जमा नहीं करेंगे, राइट? इफ इट इज इन अ न्यू एरिया, so it will take time for people to come and invest money in that branch. तो जब तक वो ब्रांच का assets under management, जो आपका बेसिकली कासा हो जाता है और टर्म डिपॉजिट्स हो जाता है, जब तक वो नहीं भरेगा तो उस बैंक से प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी. तो व्हाट एचडीएफसी बैंक इज सेइंग दैट the profitability of each of these branches, of these 4,800 branches that they have opened in the last 5 years, that is going to improve. So इससे क्या होगा, they will get some operating leverage. Operating leverage कब मिलता है? Very simple. Operating leverage kicks in when तुम्हारा operating cost से ज़्यादा उस ब्रांच से तुम्हारा revenue recognition ज़्यादा होता है. तो इनिशियली फॉर ईच ऑफ दिस ब्रांचेस उन लोगों का कॉस्ट आइटम ज़्यादा था. अभी कॉस्ट विल स्लो डाउन, but the revenue from each of these branches will rise, leading to increase in their profitability of the branch. तो वो यही बोल रहे हैं कि enormous operating leverage आएगा over the next 3 to 5 years. और operating leverage आने का मतलब ये है कि margins of the bank, the pre provisioning operating margins जो हम बोलते हैं, pre PPOP बोलते हैं जिसको, वो increase होएगा. तो there is a chance that NIMS जो बैंक के compress हुए थे, slight increase in NIMS इस वजह से देखने आ सकता है. सेकेंडली वो लोग क्या बोल रहे हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन लोगों का मार्जिन विजिबिलिटी एंड आरओए एक्सपेंशन होगा. ठीक है, राइट नाउ दे आर पुशिंग टू रिटर्न टू एन आरओए अराउंड 1.8 to 1.95% एंड टू देयर हिस्टोरिकल बेंचमार्क ऑफ 2%. कोई भी ब्रांच का रिटर्न ऑन एसेट्स 2% अच्छा माना जाता है, राइट? एंड सो ये ऑपरेटिंग लेवरेज will help the branch increase their ROA as well as improve their margins. Third and most important thing is that बैंक में एक बहुत प्रेशर था over जब तक from the point that HDFC Bank had merged with HDFC Limited, उसमें क्या हो गया था that उन लोगों का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो went above 100. ये क्यों हो गया था? Because HDFC Limited was not a bank. It could not, उसके वजह से उन लोगों का डिपॉजिट्स बहुत हाई हो गया था व्हेन कंपेयर टू द क्रेडिट. तो इसके वजह से क्या हो रहा था कि बैंक क्रेडिट नहीं दे पा रहा था ज़्यादा, राइट?
जब तक वो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो नॉर्मल बेसिस पे नॉर्मलाइज नहीं हो रहा था, ठीक है. नाउ दे हैव गाइडेड दैट यू सी देयर क्रेडिट ग्रोथ, जो बेसिकली वो लोग अपना लोन्स और एडवांसेस देंगे पब्लिक को, दे विल इंक्रीज दैट in FY26 to 12 to 13 to 14%. उनके कॉन कॉल में भी द मैनेजमेंट हैड गाइडेड फॉर दिस. प्रीवियसली अगर आप देखोगे लास्ट 1-2 साल से देयर क्रेडिट एंड देयर एडवांसेस जो वो लोग कर रहे थे ऑन अ ईयरली बेसिस, दैट वाज अराउंड 10%, और दैट वाज बिलो द ग्रोथ ऑफ क्रेडिट इन द कंट्री में क्रेडिट ग्रोथ हो रहा था 13-14% से, और HDFC बैंक का जो एडवांसेस निकल रहा था दैट वाज लेसर देन दैट, एंड दैट इज वाई along with pressure on NIMs and pressure on the CDR ratio, HDFC बैंक में काफ़ी डिरेटमेंट हुई थी. Right now they're guiding for an increase in that. So इससे क्या होगा that ज़्यादा एडवांसेस देने से क्या होगा, they will be able to grow at a pace which is matching the market. Also they have said that उनके NPAs में उनका जो quality of book है इट इज़ वेरी ग्रैन्युलर, एंड उसमें देर इज नॉट मच एनपीएस, उनका क्वालिटी बहुत सही है बुक का. इसका मतलब ये है दैट चांसेस ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ प्रोविजंस जिससे नेट प्रॉफिट में इम्पैक्ट होता है वो होने के चांसेस भी कम है, राइट. तो इसके वजह से HDFC बैंक राइट नाउ एक वैल्यूएशन लेवल पे ऐसा है, अगर आप लोग जाके HDFC बैंक को चेक करोगे ओवर हियर, यू विल सी दैट HDFC बैंक्स PE इज एट 16.7, और ये पर्टिकुलर PE is one of the lowest that HDFC Bank has been in a long period of time. Last 10 साल में this is the lowest PE that HDFC Bank is around, one of the lowest bands of PE. तो अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम से HDFC का अर्निंग्स बढ़ा, उनका निम्स पे एक्सपेंशन हुआ, उनका क्रेडिट ग्रोथ में इंक्रीज हुआ, राइट, उनका ऑपरेटिंग लेवरेज फ्रॉम द ब्रांचेस दैट दे हैव ओपनड ओवर द लास्ट 4-5 years वो किक इन हुआ, उनका CDR रेशियो लेस देन 90 के पाथ में इंप्रूवमेंट होते दिखा, राइट. NPAs जो अभी इन दिस करेंट साइकिल इन प्रॉपरली मेंटेन्ड है, NPA ज्यादा नहीं है, लेस देन 1 है नेट NPA. तो ये हुआ तो बैंक में देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट द बैंक माइट गेट अ स्लाइट अपटिक इन देयर रेटिंग, और रेटिंग में अपटिक होने से री रेटिंग भी होगा, और बैंक की परफॉर्मेंस, उनका जो रिटर्न है बिकॉज वैल्यूएशन लो है, दैट कैन स्लाइटली इंक्रीज. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम HDFC बैंक, ठीक है. यूनिक बेट है राइट नाउ, बट यू विल हैव टू लुक एट अ लिटिल बिट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू, ठीक है, बिकॉज रिसेंटली अगर आप न्यूज़ पढ़ोगे there's been some huckus about their Dubai CT1 bonds जो उन्होंने the chairman जिसने अभी रिजाइन किया था, दे रेज सम रेड फ्लैग्स, तो वो आप लोगों को थोड़ा देखना पड़ेगा. बट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, in terms of the numbers, HDFC Bank is something you guys should look because of its valuation and growth prospects जो improve हो रहे हैं over the last few years. Second company जिसके बारे में we'll have a discussion now is Bellrise. Okay, so Bellrise industry is presents a compelling investment thesis driven by strategic transformation from a traditional tier 1 automotive component supplier to a highly integrated tier 0.5 system provider fortified by exceptional capital allocation and high margin non-auto diversification. ठीक है, so let's एक बार understand what this means. First of all, what does Bellrise do? Bellrise automotive companies like आप ले लो बजाज या फिर कोई भी 2-wheeler या 4-wheeler automotive OEMs जो होते हैं उनको ऑटो कंपोनेंट सप्लाई करता है, ठीक है ना. ऑटो कंपोनेंट्स कुड बी स्टीयरिंग व्हील्स, कुड बी सस्पेंशंस, कुड बी शीट मेटल चैनल्स, कुड बी अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो, ठीक है, ठीक है. राइट नाउ जो उनका बिजनेस है इट इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन 2-wheelers, तो ऑलमोस्ट 60% ऑफ उनका रेवेन्यू 2-wheeler component सप्लाई करने में आता है, एंड देयर इज अ सेगमेंट ऑफ 4-wheeler आल्सो. व्हाट Bellrise wants to do right now is not only grow their 4-wheeler auto component supply, ठीक है, बट ऑल्सो डाइवर्सिफाई द रेवेन्यू, ठीक है. अब ये 4-wheeler में कैसे एंट्री मारेगा, 2-wheeler को कैसे ग्रो करेगा? वेरी सिंपल. रिसेंटली उनका जो बोर्ड था, ठीक है, उन्होंने 2 इंडिपेंडेंट कंपनीज को मर्ज कर दिया है, प्रोमोटर एंटिटीज को. एक था बडवे ऑटोकॉम्स, एक था एक्सिमस इंफ्राटेक, ठीक है. और ये जो मर्ज हुआ दैट हैपेंड एट अ वेरी डिस्काउंटेड रेट.
उसको 8.3x पी में मल्टीपल में हुआ, मतलब वैल्यूएशन जिसमें उन लोगों ने ये कंपनी को मर्ज किया वॉज वेरी चीप कंपेयर टू द लिस्टेड एंटिटी जो बेलराइज इंडस्ट्रीज की पी थी उस टाइम पे 31 के आसपास। इसका मतलब इमीडिएट वैल्यू ड्राइवर हो जाएगा। इसका मतलब ये जो एंट्री ये जो कंपनी आया मर्ज होके इंटीग्रेट होके, ठीक है, वो इमीडिएटली ईपीएस एक्रेटिव हो जाएगा। नाउ ये मर्ज के बेनिफिट क्या है? स्ट्रेटेजिकली दिस मर्ज विल प्रोपेल बेलराइजेस कंसोलिडेटेड कंटेंट पर व्हीकल। ठीक है, बेसिकली आप जब एक कंपोनेंट सप्लायर हो, आप हर व्हीकल से एक अमाउंट ऑफ मनी निकालते हो, राइट, सप्लाई के वजह से, दैट इज नोन एज कंटेंट पर व्हीकल। दे आर सेइंग that because of this merge the content per vehicle for their suppliers to the OEMs will rise by 20% to 17,300 से डायरेक्टली 20,300 हो जाएगा। आप ये सोचो, पर व्हीकल अगर 20% जंप होता है देन ओवरऑल सेल्स में दिस इम्पैक्ट विल बी 20% और इवन हायर, क्योंकि लेवरेज किक इन हो जाएगा। सेकेंडली दे आर सेइंग कि भाई we will not only just be a supplier to auto companies, हम लोग क्या करेंगे, will diversify our revenue। कल TCS में भी हमने देखा था डाइवर्सिफिकेशन हो रहा था रेवेन्यू में। सिर्फ हम लोग एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज नहीं करेंगे, हम डेटा सेंटर बनाएंगे। इधर बेलराइज भी सिमिलर चीज कर रहा है, सिर्फ हम लोग ऑटो कंपनीज को कंपोनेंट सप्लाई नहीं करेंगे, वी विल जस्ट नॉट बी अ टायर 1 और अ टायर 0.5 सिस्टम सप्लायर, we will diversify our revenue into two other parts। क्या है ये two other parts? एक है they want to enter the defense segment, और इसके लिए what they have done, they have made a strategic joint venture with Israel's Plasan Sasa। अब ये Plasan Sasa करता क्या है? Plasan Sasa has made a particular mobility platform जिसका नाम है Atem। ठीक है, अभी Atem प्लेटफॉर्म इज काफी सक्सेसफुल इन इजराइल, ओके, और ये प्लेटफॉर्म को what they will do, they will now want to manufacture this particular Atem vehicles inside India। ठीक है, और मैन्युफैक्चर करके इंडिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्रीज है उनको ये लोग अपना ये पर्टिकुलर व्हीकल्स दिखाएंगे। इफ द डिफेंस मिनिस्ट्री फील्स दैट दीज व्हीकल्स आर सूटेड फॉर द इंडियन आर्मी, सूटेड फॉर इंडियन बैटलफील्ड्स, देन दे विल प्लेस ऑर्डर्स टू बेलराइज। तो इनसे उनका डिफेंस ऑर्डर में ग्रोथ होगा। दे आर पार्टिसिपेटिंग इन इंडियाज मेड इन इंडिया डिफेंस स्टोरी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेंस कंपोनेंट्स इन इंडिया। तो एक तो डिफेंस में एंट्री हो गई। दूसरा, रिसेंटली व्हाट दे हैव डन, दे हैव एक्वायर्ड अ फ्रेंच एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर कॉल्ड एफडीएम। ठीक है, और ये एक्विजिशन भी इन कंपनी ने 0.1x ऑफ देयर प्राइस टू सेल्स में किया है, विच इज अनदर स्टील डील। ठीक है, अब ये कंपनी करता क्या है, ये कंपनी सिंपल चीज करता है कि ये कंपनी ग्लोबल सप्लाई चेन्स लाइक एयरबस इज वन ऑफ देयर ओईएम जिसके साथ एसडीएम काम करता है, एंड दे मेक एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स। ठीक है, नाउ एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री एयरक्राफ्ट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इज अ वेरी हाईली स्किल्ड एंड नीश इंडस्ट्री जिसमें बहुत ज्यादा बैरियर्स टू एंट्री होता है। मतलब आप देखे होंगे कि ओनली एयरबस एंड बोइंग आर द टू वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ओईएम्स जो एयरक्राफ्ट बनाते हैं, राइट। तो अगर आप इन दो ओईएम को अपना सप्लाई कर सकते हो ऑफ एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स, तो यू आर एंटरिंग अ वेरी नीश इंडस्ट्री जहाँ पे मार्जिन बहुत हाई होंगे एंड जहाँ पे द ग्रोथ फॉर द फ्यूचर इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड। ठीक है, दे हैव ऑल्सो सेड वन मोर थिंग रिसेंटली दैट इनका जो सप्लायर ऑफ ऑटो कंपोनेंट्स है, लाइक सस्पेंशन है, स्टीयरिंग कॉलम्स है, हाई टेंसाइल स्टील कंपोनेंट्स है, ईच ऑफ दिस सप्लाइज इटसेल्फ टू द पर्टिकुलर ओईएम्स आर स्केलिंग इनटू मल्टी 100 crore बिजनेसेस। तो इसका मतलब इनका प्रोडक्ट मार्केट फिट अच्छा है। ठीक है, इसके वजह से इतने ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं उनके पास। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग दे हैव 25% मार्केट शेयर इन आवर शीट मेटल सप्लाई टू ओईएम्स। तो इधर भी एक स्टिकी अमाउंट ऑफ अगर आप सोचोगे बैरियर्स टू एंट्री में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज स्विचिंग कॉस्ट। तो अगर 25% मार्केट शेयर एक कंपनी का है और वो शीट मेटल सस्पेंशन जैसे इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट्स अपने ओईएम्स को सप्लाई करते हैं ओवर अ वास्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो उनका स्विचिंग कॉस्ट भी कम हो जाता है ना। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्विच फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बेलराइज इंडस्ट्री टू से अनदर XYZ इंडस्ट्री because if Belrise has a strong product market fit.
राइट. सो यही था डिस्कशन अबाउट बेलराइज. दे आर डाइवर्सिफाइंग देयर रेवेन्यूज. डिफेंस में घुस रहे विद प्लासन सासा for aerospace manufacturing and aircraft supply component manufacturing. Their partnership with FDM will help them directly get orders from Airbus and other, you know, and other French aerospace and other defense orders. तो इसके वजह से बेलराइज की जो गाइडेंस है, ठीक है, बेलराइज की गाइडेंस शुड आइडियली बी अपग्रेडेड इन द कमिंग फ्यू ऑर्डर्स. राइट नाउ उसका मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा conservative management है बेलराइज का, but they have a very good the management itself is very educated. बहुत सारा experience है उनके पास. They've guided for 15 to 20% revenue growth, but if you take into consideration the recent merger that they have done as well as the acquisitions that they have done, उनका revenue growth should ideally be much more than 20%, right? As well as उनका EBITDA margins में भी there will be expansion. I would not be surprised to see उनका EBITDA margins growing from 12 to 12.6% or even higher in the coming future. So this is why Belrise is a company जो काफ़ी मार्केट में स्ट्रेंथ दिखा रहा है. अगर आप लोग देखोगे ये बुल मार्केट, ये बियर मार्केट के टाइम पे व्हेन द निफ्टी वाज डाउन सो मच, एक साल में इसने 110% रिटर्न दिया है एंड इट इज बीटिंग द निफ्टी 500 बाय 113.9% इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ. और अगर मैं इधर जाऊंगा और मैं यू नो लेट मी जस्ट सर्च बेलराइज एंड शो समथिंग टू यू. अगर बेलराइज का वैल्यूएशन में देखूँ राइट नाउ, राइट, बेलराइज की वैल्यूएशन राइट नाउ इज 38. ठीक है, इट इज नॉट लाइक अ कंपनी जिसका वैल्यूएशन 60-70 पी में है जहाँ पे देर इज नो मार्जिन और सेफ्टी. कंपनी खुद बोल रहा है मैं 20% टका पे ग्रो करेगा, उसका मार्जिन एक्सपेंशन होगा, हाई मार्जिन बिजनेसेस में घुस रहा है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू कर रहा है, राइट. तो इसका मतलब दिस वैल्यूएशन इज नॉट ओवर प्राइस. अगर उसका 25% 20% भी ग्रोथ आया, उसका पेग रेशियो स्टिल कमिंग लेस देन 2 एंड दैट इज वाई कंपनीज जिसका पेग रेशियो लेस देन 2 होता है and which has good growth potential, आप जरूर you guys should track. That is why I've included Belrise in my tracking list. ठीक है. Now we'll move to the next company. This is Acutaas Chemicals. ठीक है. Acutaas Chemicals क्या करता है पहले वो समझ लेते हैं. ओके. Acutaas Chemicals represents a highly compelling investment opportunity from a traditional active farm because they're transitioning from a traditional API maker, so API supplier, to a diversified high margin specialty chemical platform. ठीक है. Now इसका मतलब एक चीज हमें क्लियरली समझ में आ रहा है that इस कंपनी में भी there is an aspect of revenue diversification. अब देखते हैं क्या कर रही है कंपनी. ठीक है. FY26 का गाइडेंस तो इन लोगों ने बीट किया मल्टीपल टाइम. ठीक है. ये अपना लो शेडिंग लो मार्जिन कमोडिटी प्रोडक्ट्स को फंडामेंटली उस बिजनेस से निकल गए. ठीक है. दे हैव गाइडेड फॉर 30% रेवेन्यू ग्रोथ with exceptional 30 to 35% EBITDA margin. First of all, from a guidance perspective, that is a great thing. ठीक है. Now what is the company going to do? ठीक है. The company is going to enter and grow much faster in their explosive CDMO sector. ठीक है. CDMO sector के ऊपर I'll make a detailed video sometime next, but I just wanted to tell you that ये लोग क्या करेंगे, ये आपका CDMO सेक्टर में टारगेट कर रहे हैं 1000 करोड़ रेवेन्यू निकालने का बाई FY28. ठीक है. सिर्फ CDMO सेक्टर से. नाउ डाइवर्सिफिकेशन कैसे कर रहा है Acutaas Chemical? Acutaas is aggressively expanding its total addressable market through 2 new highly lucrative verticals. One is battery chemicals. ठीक है. इनका जो एक न्यूली इनॉग्रेटेड फैसिलिटी है झगाड़िया में, वो कमर्शियल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रोलाइट स्टार्ट करेगा इन Q1 FY27. एंड इफ यू गाइज नो, इलेक्ट्रोलाइट्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स जो आपको चाहिए व्हेन एवर यू आर मेकिंग अ बैटरी केमिकल. और अगर आप लोग थोड़ा भी दिमाग लगाओगे, यू गाइज विल नो दैट EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी में चलता है, राइट. एंड ऑल ऑफ दीज बैटरीज आर लिथियम आयन, लिथियम सोडियम, a lot of different combination of batteries are being developed और उस हर बैटरी में you will require electrolytes, right. तो इसके वजह से the growth of this particular segment जहाँ पे वो घुस रहा है is long term, right. phase 2 expansion इनका already चल रहा है for battery chemicals. Secondly, semiconductor chemicals पे घुसेंगे. What is this? So they have a domestic subsidiary known as Baba Fine Chemicals
and that they are turning it around from a loss making company to a profit making company. And इनमें what they have done is इनका 200 crore Indichem जॉइंट वेंचर साइन किया है विद साउथ कोरिया. सो साउथ कोरिया में देयर इज सम इंडिकेम कंपनी, इनके साथ दे हैव डन अ जेवी, राइट, एंड उससे दे विल मेक अ फ्यू सेमीकंडक्टर केमिकल्स. ठीक है, नाउ मैनेजमेंट एक्सपेक्ट दैट दिस जेवी विल डिलीवर हायर मार्जिन्स देन द कोर फार्मा बिजनेस अलोंगसाइड अ स्ट्रॉन्ग एसेट टर्नओवर. एसेट टर्नओवर मतलब, स्ट्रॉन्ग एसेट टर्नओवर मतलब क्या होता है कि इफ यू हैव से 100 crores ऑफ एसेट, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, अगर उससे आप 100 crore ऑफ सेल्स जनरेट कर रहे हो तो आपका एसेट टर्नओवर 1 होता है. बट अगर वो 100 crore ऑफ एसेट से आप 200 crore ऑफ सेल्स जनरेट कर सकते हो, देन योर एसेट टर्नओवर बिकम्स 2x. इसका मतलब एसेट टर्नओवर बढ़ने से क्या होता है कि मैं सेम एसेट से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा हूँ. समझ रहे हो? सो इफ एन एसेट टर्नओवर फॉर वन बिजनेस कंपोनेंट, बिजनेस लाइन इंक्रीजेस, देन इट इज हाईली पॉसिबल दैट इनका मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि ज्यादा रेवेन्यू फ्रॉम सेम एसेट जनरेट कर रहा है. अगर आप लोग समझ रहे हो, ठीक है. नाउ एक्यूटास सीडीएमओ में मेजर प्लेयर है, ठीक है, बट इट इज ऑल्सो एंटरिंग बैटरी केमिकल्स एंड सेमीकंडक्टर्स. और सीडीएमओ सेक्टर में इटसेल्फ देयर इज ह्यूज ग्रोथ. इंडिया में सीडीएमओ का बहुत ज्यादा ग्रोथ स्कोप है, बिकॉज अ लॉट ऑफ दिस जो अपना इनोवेटर कंपनीज होता है, they outsource CDMO. Like they do a little bit of research, but contract development, manufacturing of all of these particular chemicals and biologies ये outsource कर देते हैं, because उनको इंडिया में एक्सपर्टीज भी मिल रहा है फ्रॉम आवर कंपनीज, एंड उनको इंडिया में कम कॉस्ट भी पड़ रहा है. ठीक है, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाऊं एक और चीज, राइट. सो व्हाट द कंपनी हैज गाइडेड कि मैं अपना सीडीएमओ सेक्टर से ही बाई FY 28,000 crore की बिजनेस करूंगा, राइट. एंड राइट नाउ क्या हो रहा है, इट इज डूइंग TTM बेसिस में 9,230 crores की इसकी सेल्स है. विच मीन्स दैट अगर सीडीएमओ सेक्टर स्केल हो जाता है तो इनका रेवेन्यू बेस और भी जल्दी बढ़ेगा. ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू गाइस हैव टू बी लिटिल वॉच आउट फॉर. और एक चीज देख लो एक्यूटास में, see the interest of FIIs and DIIs in the company. Continuously they are increasing their stakes. FIIs भी 8.9% स्टेक लिए हुए बैठे कंपनी का, एंड DIIs have brought 9.27%. इसमें काफी मार्की DIIs भी एंटर किया रिसेंटली. SBI small cap, you know, all of these have taken a huge position, 5.76% of their portfolio, which is a big thing. तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि Acuitas is also a company जो आप लोगों को देखना चाहिए in terms of opportunity. Now let's move to the next company. This is EFCIL. ठीक है. Now EFC Limited basically. Now EFC Limited क्या करता है, they offer a real estate as a service. flywheel में काम करता है. तो what is this? They have basically 3 growth pillars. ठीक है, तो एक तो उनका पिलर वो है जो आपका बेसिकली ऑफिस स्पेस लीजिंग में देता है. ठीक है, विच इज नोन एज देयर लीजिंग डिजाइन एंड लीजिंग बिजनेस लाइन. एक कंपनी, वन पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ देयर बिजनेस इज देयर डिजाइन एंड बिल्ड ऑपरेशंस, एंड द लास्ट सेगमेंट ऑफ देयर बिजनेस इज फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग. तो बेसिकली 3 अपना सेगमेंट्स हो गए कंपनी के. नाउ इसमें क्या है, द ग्रोथ ऑफ EFCL मैं एक बार अगर आपको की ग्रोथ पिलर्स दिखाऊं जो उनका लास्ट 1-2 मैनेजमेंट कॉल से दे हैव बीन हाईलाइटिंग, यू विल सी दैट द डिजाइन एंड बिल्ड वर्टिकल इज एक्सपीरियंसिंग एक्सप्लोसिव मोमेंटम. अभी डिजाइन एंड बिल्ड वर्टिकल में होता क्या है, फॉर एग्जांपल से देयर इज अ पर्टिकुलर ऑफिस जो से PNG प्रॉक्टर एंड गैम्बल हैदराबाद में खोलना चाहता है. ठीक है, they want to create an office based on their own design, their own office की design, their own vision and mission philosophy, उनका own space का design कैसा होगा, how they want the office to look. तो इसके लिए they will obviously not always find a rental office with that design, right? मतलब अगर वो जाके exactly वो टाइप का ऑफिस ढूंढने की कोशिश करेंगे in the market तो उनको नहीं मिलेगा. So at that point of time what they'll do, they'll come to a company like EFC and उनको बोलेंगे कि भाई
दिस इज द डिजाइन, द लेआउट ऑफ माई ऑफिस आई वांट, इधर इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम होना चाहिए, इधर एक सुंदर सा कैफेटेरिया होना चाहिए, इधर आई शुड हैव प्रोजेक्टर्स, इधर आई शुड हैव अ नैरो वॉक, इधर आई शुड हैव अ बोर्ड रूम, ऐसे इसका डिजाइन एलिमेंट्स होना चाहिए। तो ये कस्टमाइज बिल्ड करते हैं। ईएफसी क्या करेगा, दे विल कस्टमाइज देयर ऑफिस स्पेस अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ पीएनजी एंड बिल्ड इट। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, ये लीजिंग बिजनेस से डिफरेंट है, बिकॉज इट इज कस्टमाइज, इनमें ऑपरेटिंग मार्जिन ज्यादा है, राइट। ऑपरेटिंग मार्जिन अगर ज्यादा होगा तो ईएफसी विल जनरेट मोर प्रॉफिट्स बाई हाई बुकिंग हायर रेवेन्यू इन दिस बिजनेस। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग का डीएनबी वर्टिकल इज ग्रोइंग 76%, Q3 में 76% से ग्रो हुआ है, एंड हमारे पास ये वर्टिकल के लिए इटसेल्फ आई हैव 160 crore ऑफ ऑर्डर बुक, ठीक है। एंड मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंटली गाइडिंग दैट कि ओवर द नेक्स्ट 1 to 2 years में एटलीस्ट द डिजाइन एंड बिल्ड पार्ट ऑफ माई बिजनेस को 50 to 60% से ग्रो कर सकता हूँ, ठीक है। दैट इज एन एक्सप्लोसिव गाइडेंस। देन वी आर लुकिंग एट द फ्यूचर मार्जिन लीवर। व्हाट इज दिस, द फ्यूचर मार्जिन लीवर क्या होगा, दैट इज द फर्नीचर वर्टिकल। अब फर्नीचर वर्टिकल में व्हाट डज ईएफसी डू, वेरी सिंपल। देखो, अगर तुम ऑफिस पे डिजाइन कर रहे हो, तुम वो बेसिक कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, फर्नीचर के लिए वाई विल ईएफसी गो एंड बाय इट फ्रॉम सम अदर फर्नीचर कंपनी जो फर्नीचर बना रहा है। दैट इज वाई व्हाट दे हैव देयर ओन बिजनेस वर्टिकल, जहाँ पे वो लोग फर्नीचर भी बना देते हैं इन देयर अंडर देयर कंपनीज ओन सेपरेट आर्म। तो इन दिस पर्टिकुलर फर्नीचर वर्टिकल में क्या हो रहा है, दे आर गोइंग टू सी ऑपरेटिंग लेवरेज एज वेल एज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो वो लोग बोल रहे हैं करंटली तो 35-40% की मेरी कैपेसिटी यूटिलाइज हो रहा है फर्नीचर की, जो भी मैंने फैक्ट्री सेट की है, क्योंकि डिमांड मुझे उतना नहीं मिल रहा था। बट नाउ व्हाट आई एम सीइंग इज दैट नाउ आई कैन इंक्रीज माई कैपेसिटी फ्रॉम 30-40% टू 75-80% बाई Q2 FY27। मतलब सेम कॉस्ट में ज्यादा आउटपुट, राइट। और ज्यादा आउटपुट फ्रॉम अ फैक्ट्री कैपेसिटी का मतलब बेनिफिट ये होता है कि द कंपनी इज एबल टू मेक सेल्स फ्रॉम द सेम एसेट, ज्यादा सेल्स, विच विल लीड टू ऑपरेटिंग लेवरेज एंड स्टेबिलाइज इस सेगमेंट की मार्जिन को अराउंड 25%। सो इस मार्जिन में जो एक प्रॉब्लम था बिकॉज ऑफ लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ज्यादा फिक्स कॉस्ट, वो अब मैनेज हो जाएगा और मार्जिन भी स्टेडी आउट हो जाएंगे एंड ज्यादा रेवेन्यू भी कमाएंगे, ठीक है। आफ्टर दिस व्हाट दे आर सेइंग, they are saying that okay guys, leasing will still be the most important business for us and वो stable annuity return मुझे देगा। कोई भी कंपनी जो मेरे ऑफिस स्पेस को रेंट कर रहा है, they will keep on giving me rental income, right। तो वो फाउंडेशनल है, right। and also that we are also looking to increase the seats in each of these for my leasing business। seats increase करने का मतलब दो है, either जो existing spaces है उनके पास, उनमें दे मेक्स मोर स्पेस, या फिर दे कीप ऑन acquiring spaces from developers and converting them into IT office space, real estate, so that कोई भी कंपनी आके उनसे ज्यादा उनसे स्पेस रेंट पे ले सके और उनका ये पर्टिकुलर लीजिंग मार्केट ग्रो हो जाए। तो दे आर सेइंग दे हैव इंडस्ट्री लीडिंग ऑक्यूपेंसी इन देयर ऑफिस स्पेस, 90% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी है, एंड दे आर विलिंग टू ऑल्सो इंक्रीज फ्री होल्ड और प्रॉपर्टी ओनरशिप टू 20% ऑफ दैट टोटल AUM, ठीक है। इससे क्या होगा कि उनका एबिटा मार्जिन एलिवेट हो जाएंगे और एक्सटर्नल रेंटल कॉस्ट की जो फियर है वो चला जाएगा। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और एक चीज आप लोग देख लो, 9 months ऑफ FY26 में जो उनका पैट था, दैट वाज ऑलरेडी हायर देन द इंटायर पैट ऑफ FY25, राइट। तो इस कंपनी में देयर इज सिग्निफिकेंट रेवेन्यू विजिबिलिटी जो मुझे दिख रहा है। बट ये इंटरेस्टिंगली ये कंपनी का स्टॉक बहुत ज़्यादा पीटा गया है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इज वेरी लो, दिस पर्टिकुलर स्टॉक हैज़ नॉट डन दैट वेल। इफ यू लुक एट द वैल्यूएशन, मैं आपको क्विकली EFC की वैल्यूएशन भी दिखा देता हूँ सिंस यू आर डिस्कसिंग। EFC की करंट स्टॉक पी इज ओनली अराउंड 14, राइट। और उसमें यू आर एक्सपेक्टिंग दैट द कंपनी विल ऑलमोस्ट ग्रो इट्स रेवेन्यू एट अराउंड एटलीस्ट 30 or 40%। तो आपका इफेक्टिव पेग रेशियो सोच लो कितना कम है, इट इज लेस देन 0.5, राइट। तो इस कंपनी में डाउनसाइड रिस्क मेरे को ज्यादा नहीं लगता, विजिबिलिटी ऑफ इनकम दिखता है। दिस इज व्हाई यू शुड स्टडी EFC। एंड द लास्ट कंपनी दैट विल आई कवर फॉर दिस वीडियो इज गोइंग टू बी Shaily Engineering Plastics Limited, and I'm restricting it to 5 companies in this video, guys. The only reason for that is that
The only reason for that is that the video will otherwise get exceptionally long and you guys will not be able to focus a lot and understand the points which I'm sharing, right? So I'll just cover the next five companies in part 2 of this video, right? So let's start off with Shaily. So why is Shaily so important right now? It is because it is transforming itself, okay? It is moving from a generic plastics manufacturer into a medtech powerhouse, right? And why is this? Because Shaily is one of the most proxy beneficiaries जो होएगा from the global GLP-1 boom, right? What is GLP-1? आप लोगों ने probably सुना ही होगा. GLP is basically a GLP-1 is basically a drug, okay, that people are using. Specifically it is started in the US. जो एक कंपनी था नोवो नॉर्डिस्क और एली लिली, उन लोगों ने सेमाग्लूटाइड करके एक पर्टिकुलर कंपाउंड, एक पर्टिकुलर इनोवेटिव ड्रग बनाया था, जिसको they were, you know, kind of they had patents, so they were using in their country and for weight loss. People उसको weight loss के वजह से यूज कर रहे थे. After having that drug, what would happen that people would lose weight very fast and उनके body vitals, उनका body का जो chronic metabolic diseases था उसमें improvement देखा गया, right? So India being a market जहाँ पे there's a lot of fat people, the unhealthy people who eat a lot of carbs, weight gain बहुत ज़्यादा है. So in that particular market, if GLP-1 has a very good chance of growth and scaling up, and that is why ये जो मार्च महीना के स्टार्ट हुए, from the start of March, a lot of Indian pharma companies will launch their generic versions of GLP-1 because ये Novo Nordisk और Eli Lilly का जो semaglutide का patent था, that is going off patent, expire हो रहा है. And now a lot of these Indian manufacturers will make generic as well as specialized versions of their say of this particular GLP-1 drug and sell it under their brand name. Simple, because everybody wants to have a pie of the GLP-1 market revolution, right? तो इसके वजह से how is Shaily going to benefit? Shaily is going to benefit because Shaily पेन बनाता है. वो जो आप लोगों ने देखा होगा ना कि इंसुलिन जब आप लोग, आपका पेरेंट्स से कोई लेता होगा, रिलेटिव्स इंसुलिन लेता है, यू टेक इट थ्रू अ इंजेक्टेबल पेन, राइट? तो वो पेन बनाता है Shaily. दे आर ऑलरेडी मेकिंग इंसुलिन पेन्स right now, but they will get into making pens specialized for GLP-1 delivery. ठीक है, तो वही है. तो they are saying that also interesting point is Shaily अभी डायरेक्टली इंडिया में ये पहला लॉन्च नहीं कर रहा है. Shaily has captured a staggering 65 to 75% market share among early generic filers in the Canadian GLP-1 market. मतलब बेसिकली क्या है कि जो कैनेडियन GLP मार्केट में ये ड्रग GLP-1 यूज होएगा, उसमें जो लोग यूज करेंगे, right, whoever is going to make it, they have kept Shaily as the pen manufacturer for that, and they will use Shaily's pens to inject the GLP-1 drug into their customers. So they have partnered with 23 to 24 global pharmaceutical companies, right? And that is why ये Shaily क्या बोल रहा है अपने कॉन कॉल में, द मैनेजमेंट ऑफ Shaily इंजीनियरिंग, दे सेइंग कि हमें दूर तक कोई भी ओवर कैपेसिटी का प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, बिकॉज डिमांड ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. एंड दैट इज व्हाई Shaily इज डबलिंग इट्स इंडियन पेन कैपेसिटी फ्रॉम 40 to 80 million units by mid FY27. तो इंडिया में दे हैव करंट कैपेसिटी ऑफ अराउंड 35-40 million pens per year. They are going to, you know, they have already set up the process of manufacturing and setting up a facility, पेन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जहाँ पे वो पर्टिकुलर केपेक्स करके अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी को 2x कर देंगे by mid FY27. तो आप लोग समझ रहे हो the amount of demand that this particular product will have. And the interesting thing here is that वो लोग ऐसे ही नहीं 2x कर रहे अपना कैपेसिटी को, they are increasing their capacity because this is fully backed by take or pay commercial contracts, right? इसका मतलब जो भी इंडियन फार्मा कंपनी है या फिर एनी ऑफ द कंपनीज जिससे Shaily, whoever is buying the pens from Shaily, they will have to buy the pen, otherwise they will have to pay for it. तो इसका मतलब Shaily का जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का प्रॉब्लम है या रिस्क है वो काफी मिनिमाइज हो जाता है. Even if the companies aren't able to sell इतना pens that they are buying from Shaily, they will eventually still have to pay for it. तो इसमें रेवेन्यू रिकॉग्निशन रिस्क कम होने के वजह से Shaily is kind of safe. Secondly, ये लोग डी रिस्क कर रहे हैं अपनी सप्लाई चेन को, सिर्फ इंडिया में नहीं रख रहे, दे आर डी रिस्किंग इट एंड मूविंग अ पार्ट ऑफ इट टू UAE. ठीक है, UAE भी ग्रोइंग मार्केट है. दिस इज टू मिटिगेट द जियोपॉलिटिकल China +1 India +1 स्ट्रेटेजी सप्लाई चेन. इसमें Shaily is going to invest around 300 to 350 crores of rupees to build a 75 million unit facility. 75 million में 75 million pens बना पाएंगे on a yearly basis in Abu Dhabi by Q4 FY28.
This will elevate the total global capacity of Shelly to close to 150 million units of pen per year. ठीक है, एंड मूविंग इनटू दुबई विल आल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हाई टैक्स बर्डन जो उनको इंडिया में या फिर देना पड़ता होगा, राइट. द यूएई फैसिलिटी इज ऑलरेडी 50 to 60% बैक बाय कैपेसिटी कमिटमेंट्स. अगेन सेम थिंग, फैसिलिटी से पहला पेन निकलेगा Q4 FY28 में, बट अभी से 50 to 60% ऑफ द 75 मिलियन कैपेसिटी जो वो लोग बना रहे हैं ऑफ पेन्स देयर, ऑलरेडी इट इज बैक्ड बाय ऑर्डर्स कमिंग फ्रॉम द फार्मा कंपनीज, राइट. तो इसका मतलब 37.5 to 40 मिलियन कैपेसिटी ऑफ पेन्स दे आर गोइंग टू बाई राइट नाउ. एंड अगर आप FY28 के Q4 तक जाओगे, इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट द इंटायर 100% कैपेसिटी विल बी फुली बुक्ड. तो इसमें भी रेवेन्यू रिकॉग्निशन रिस्क कम हो जाता है. देन शैली ने क्या किया, Shelly is also saying that healthcare, their industry, the healthcare book of their overall revenue mix is growing at an exceptionally faster. This is understandable, right? Because GLP-1 drug is now a very hot topic. बहुत ज़्यादा मेडिकल पर्सोनेल भी इसको सजेस्ट कर रहे हैं टू मैनेज वेट. अ लॉट ऑफ ओवर द काउंटर बाइज भी हो रहा है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, राइट. तो इसके वजह से it is expected that इसका revenue growth will be very high, right. So अभी it's growing at 139% YOY, and their management has said that their healthcare division will become their major contributor of revenue. More than 50 to 60% of the revenue सिर्फ healthcare division से आएगा in a very short point of time, right. एक point में healthcare would ideally have been a 30% revenue contributor, अभी वो 2x हो जा रहा है, एंड दैट इज बैक्ड बाई कमिटेड ऑर्डर्स. तो आप देख रहे हो कि टेलविंड कितना है शैली के पास, राइट. एंड दिस कंपनी इज ऑल्सो सेइंग दैट दे डू अ लॉट ऑफ वर्क इन देयर प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी. तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जिनका जो एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाया है उसको बोल रहे हैं, एक स्पेशल पेन बनाया है फॉर ग्लोबल इनोवेटर जिसको एक्सियम मैक्स बोल रहा है, ठीक है. तो दिस एक्सियम मैक्स पेन क्या करेगा, दिस पेन विल अगेन बी यूज्ड टू पुट द GLP ड्रग इनटू योर बॉडी. बट ये पेन क्या कर रहा है, इट हैज सम बेनिफिट्स. एक तो है इनका जो डोसेज डिलीवरी का पेन होता है ऑफ एनी पर्टिकुलर पेन, जब आप लोग इंजेक्ट करते हो तो इसका पेन काफी लो होगा. इसका पेन विल बी लो, एंड ऑल्सो दिस पर्टिकुलर एक्सियोमैक्स पेन में एग्जैक्ट कैपेसिटी जो जितना अगर आपको चाहिए वही डिलीवर होगा विदाउट एनी मिस्टेक्स. मतलब फॉर एग्जाम्पल से यू वांट 20 milligrams ऑफ द ड्रग इन योर बॉडी, so without any room for error exactly 20 milligram will be delivered. So they are saying that this particular technology is very difficult to replicate, and it is very much suited for global innovators जो high complexity products बना रहे हैं. Also one more thing, Shelly is also thinking of, तो इनका दो और डिवीजन है. एक में they make a lot of plastic components for the Indian industry. तो इसमें what they are saying that they'll move from the low end plastic component manufacture to complicated plastic and metal component manufacture. मतलब they will make components जिसमें सिर्फ easy to replicate plastic नहीं है, बट मेटल और प्लास्टिक का कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है जो हायर मार्जिन भी है एंड डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट बाय अदर्स है, राइट. एंड दे आर ऑल्सो सेइंग दैट दे वांट टू मूव इनटू सेमीकंडक्टर पैकेजिंग का कोई भी सब प्रोडक्ट. तो बेसिकली राइट नाउ 4 सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटीज या फैक्ट्रीज है, चारों ही गुजरात में है. एंड दे आर सेइंग दैट दे आर इन टॉक्स विद ऑल ऑफ दिस 4 सेमीकंडक्टर fabrication units to try and make certain customizable semiconductor packaging material जो इन fabrication units में काफ़ी यूज होगा. So इधर से भी semiconductor industry is also going to keep on growing क्योंकि AI and the digital AI revolution चल रहा है, उसमें semiconductors की बहुत नीड होती है, राइट. सो इसमें भी उनके पास एक टेलविंड है. तो इससे क्या पता चल रहा है कि शैली इज नॉट ओनली प्लेइंग अ GLP-1 बूम गेम जो एक मल्टी डेकेडल थीम होने वाला है, राइट, इन इंडिया एज वेल एज इंटायर अराउंड द वर्ल्ड. सेकेंडली क्या पता चल रहा है, सेमीकंडक्टर्स पैकेजिंग में दे आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग होल्ड विद द सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स एंड उसमें कुछ यूनिक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं. दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू मूव फ्रॉम सिंपल प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इनटू मेटल प्लस प्लास्टिक कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स जिसमें हायर मार्जिन दे कैन जनरेट. So and also in whatever capacity expansion Shelly is doing, that is backed by order visibility. मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए उन्होंने कि अगर तुम मेरा कैपेसिटी को ले रहे हो, बाई पेन को अगर तुम खरीदते भी नहीं हो, देन ऑल्सो यू हैव टू पे. तो इसमें रेवेन्यू रिस्क, जो विजिबिलिटी का रिस्क है वो भी कम हो जाता है. तो Shelly इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी जो डेफिनेटली you guys should track. Shelly is also has a stronger relative strength than Nifty 500 and the reason is that ये सारे जो ग्रीन ग्रीन एंड न्यू सॉर्ट्स ऑफ सेगमेंट्स में घुस रहे हैं
That is why Shelly is something you guys should look. Shelly का current PE 63 है, slightly elevated है, but keep in mind इनका जो main growth driver है, इनका healthcare segment है, GLP-1 pens बना रहा है, उस segment is growing 130, 140, 100% on a year-on-year basis. तो अगर उस segment becomes a majority of their contributing revenue on a yearly basis, तो इसमें भी you will notice that the PEG ratio of this company is actually less than 1. That is why earnings as well as valuations को एक साथ देखना चाहिए, and that is why you should definitely track Shaily Engineering, right? So that is the 5 companies which I have kept for this video. मैंने 10 बोला था, but I've kept 5. The reason is that the video is getting very long and I wanted to explain about each and every company in a little bit of detail. I could not cover obviously everything, that would be a 5-hour video, but little detail, little context आपको दे पाऊँ about these 5 companies. तो 5 companies pending है, which I will cover in part 2 of this video. I hope you guys liked the content of this video. I'm showing you how to use Screener. I'm showing you how to use AI tools that I have made to analyze companies. मैं आपको commentary दे रहा हूँ, right, about what the future growth of the companies are, how they are going to do their capacity expansion, क्यों ये companies lucrative है, इनका valuation क्या है, इनका management commentary क्या है, so that you guys can take a rational decision on whether to invest or not invest in all of these companies. And making all of this video takes a lot of time, guys, takes a lot of effort. So if you guys are liking the content, please do like and subscribe to my YouTube channel, because I will be covering the results of all of these companies. तो सिर्फ 5 था. We will move and discuss more than 50-60 results in this particular earning season and going forward. So this will be helpful for you to, you know, जब भी सोचो आपको कोई वीडियो शैली के ऊपर देखना, you can refer to videos like this, you can refer to the following videos जो मैं बनाऊंगा, and this will be helpful for you for your equity market research, and it will be a very good thing for me to see my community grow, and it will only motivate me to make better videos. So thank you guys, hope you like the video. Please like and subscribe, and I'll see you guys in part 2 of this video in very soon. Thank you.